of Gyanodaya Inter College, Mansurgarh, respected all the teachers of Gyanodaya Inter College, Mansurgarh, and my dear students of Gyanodaya Inter College, Mansurgarh. At first, before speaking anything, I welcome to all of you on this great vacation of 2 October, Gandhi's birthday. My dear students, today we have gathered here for a special purpose, and everyone of us knows that today is the 2nd October and it is the birthday of great leader of India, Mr. Mahatma Gandhi ji. Mr. Mahatma Gandhi ji was belonged to a very respected family. Mahatma Gandhi attended the school like you. He passed matriculation in India, and after passing matriculation in India, he went to England for further study and achieving the degree of law. He completed his law degree in England and returned India as a barrister. During his student days, when Mr. Gandhi lived in England or Britain, he was very zealous person. Mahatma was not developed in his personality. In England, he wore English dresses, he attended the party, dances, and enjoyed in different parties. He tried his best to look like exactly an Englishman in that situation. But situation changed. He came to India after taking the degree of barrister, and in India he tried some practice in Bombay High Court, but at that time he was not succeeded in his practice. Then after some time, an invitation came from South Africa, and he went to South Africa to study a problem and solve that problem. He went to South Africa, he observed the things very closely and found the tyranny of the administration against the lower person and black person. There he struggled for the right of the black person and lower person. At last, he succeeded in his aim in South Africa. Then he returned India. When he returned India, a great personality had been developed in Gandhiji. He saw the miserable condition of the people in India. At that time, the English rule was at its top. English tyranny was done to the person of India. No one was able to oppose the English. In that situation, Mr. Mahatma Gandhi was very much impressed when he saw the bad condition of Indian people, the poverty of Indian people, the bad clothes of Indian people. He was much pressed, and he decided that he would wear the clothes of as an Indian, not for as an Englishman. He devoted
his old concept and became pure Indian. He began to wear khadi dress as we can see in the photo of Mr. Mahatma Gandhi. Mr. Mahatma Gandhi soon started movement against the English. People believed him and began to follow to Mr. Mahatma Gandhi in numbers of thousands and lakhs. Mr. Gandhi ji decided to struggle against the English man till India became free. He leaded many movements such as Satyagraha movement, Bharat Chodo Andolan, Dandi journey far. In his every plan and in his every aim, thousands of Indian people were ready to sacrifice their life for Mr. Gandhi. Now I want to draw the attention of intermediate class students. There is a lesson in your English chapter named Indigo. Indigo is the lesson in the syllabus of intermediate English. From that lesson, you can learn more about the simplicity of Gandhi ji. Gandhi ji had become very popular and very VIP person, but he was very simple to the common people of India. In that lesson, you will read that there was a simple person of Champaran named Rajkumar Shukla. He was an ordinary farmer. He was not literate. He did not know how to write, how to read, but he was farmer. He was also a sharecropper. And in the Champaran, there was a problem of sharecroppers, landlord system. Under landlord system, the landlord took maximum benefit of the crop and the sharecroppers had to suffer much. Mr. Rajkumar Shukla went to Gandhi ji. He visited Gandhi ji in Lucknow. He told everything to Gandhi ji. Gandhi ji assured him that after completing my journey and completing my other work, I shall surely go with you to Champaran. And Rajkumar Shukla went to Gandhi ji, lived with Gandhi ji, and at last he requested Gandhi ji to give a fixed time to go to Champaran with him. Gandhi ji told him that there is a meeting. He would come and Gandhi ji would go with him to Champaran. Rajkumar Shukla waited the day and reached at the appointed place and time. Then Gandhi ji came to Champaran with him and struggled against the landlord, against the Englishman. Mr. Gandhi won the battle of sharecroppers and sharecroppers received the share and money of his own benefit and landlord system disappeared in Champaran. Mahatma Gandhi was very simple person in spite of being so popular.
he did not hesitate to visit a common person also. Compared to Gandhi ji and the small leaders of today, such as MP, MLA, we give their vote, he becomes MP or MLA, and when they receive the post of MP or MLA, so irresponsible that we cannot visit him in his office or in his home. What is difference in those days and the days of today? For saying we have become free, but we are not free to our leaders. The concept of Mr. Mahatma Gandhi is alive even today. The system of opposing Mr. Mahatma Gandhi is alive even today and will live alive forever. Mahatma Gandhi was the person who was well known to not only in India but also throughout the world. Now I shall explain you in short in Hindi because maximum of the students would not understand to me what I told to him. In short, in Hindi, I would like to explain you. मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को हिंदी में मैं बहुत ही संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि बच्चे थे वह एक सम्मानित परिवार से थे, सम्मानित परिवार में पैदा हुए थे। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के काठियावाड़ में उनका जन्म हुआ था। गांधी जी भारत में मैट्रिक की परीक्षा पास किए, उसके बाद वो आगे की डिग्री हासिल करने के लिए इंग्लैंड में गए, इंग्लैंड में पढ़ाई लिखाई किए, इंग्लैंड में वो कह लीजिए बैरिस्टर बने, बैरिस्टर बन के भारत वापस आए और भारत में कुछ दिनों तक वो अपनी वकालत का प्रैक्टिस भी करने की कोशिश किए। उसी दौरान साउथ अफ्रीका से यानी दक्षिण अफ्रीका से एक बुलावा आता है, एक रिक्वेस्ट आता है और मिस्टर गांधी जी साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। साउथ अफ्रीका जाने के बाद वो जमीनी हकीकत को, गांधी जी का काम था जिस भी आंदोलन को छोड़ते थे, जिस भी आंदोलन को वो छेड़ते थे, पहले जमीनी हकीकत से वाकिफ हो लेते थे ताकि सिर्फ किसी के कहने पर हम गलत पैरोकार ना बने। तो वहां पर गए, जमीनी हकीकत को समझे, आम जनता से मिले, छोटे छोटे लोगों से मिले, सबकी बातों को सुने, सबकी समस्याओं को सुने। उसके बाद आंदोलन में शामिल हुए। वहां आंदोलन में इनको विजयश्री हासिल हुआ, गांधी जी का हौसला बुलंद हुआ। गांधी जी उसके बाद वहां अपनी उद्देश्य की पूर्ति करने के बाद फिर भारत वापस लौट आए और भारत में जब लौट करके आए तो उस समय अंग्रेजी शासन यहाँ पर चरम पर था और अंग्रेजों का अत्याचार भी और जमींदारों का अत्याचार भी भारतीय जनता के ऊपर चरम पर था। मिस्टर महात्मा गांधी ये सारी चीजें देखे, उनको बहुत दुख हुआ, उनको बहुत दर्द हुआ, उनको बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने शपथ ले लिया। क्या शपथ लिया? भारत माता की, भारत माता को अंग्रेजों की चंगुल से आजाद कराने का, भारतीय किसानों को, भारतीय जनता को, दबे कुचले लोगों को, असहाय लोगों को, गरीब लोगों को उनके हक का अधिकार दिलाने का महात्मा गांधी ने शपथ लिया। और महात्मा गांधी जब एक बार कमिटमेंट कर देते थे तो उसके बाद वो पीछे नहीं हटते थे। इसी वजह से तमाम सारे आंदोलनों में महात्मा गांधी को जेल भी जा शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन
थे। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन को चलाते हुए भारत माता को आजाद कराने का काम करते थे। और इसी कड़ी में उनका जो शांतिपूर्ण आंदोलन था, आज भी हमारे देश में और पूरी दुनिया में वह शांतिपूर्ण आंदोलन ही प्रासंगिक रह गया है। जैसे कि आज भी किसी के खिलाफ कोई आंदोलन करना होता है बड़े मात्रा पर, तो शांतिपूर्ण आंदोलन का मतलब हम 2, 4, 10 पत्र लिखते हैं। जैसे एसओ को पास एक पत्र भेजते हैं, थानाध्यक्ष के पास, उसके बाद डीएम के पास भेजते हैं, संबंधित विभाग के पास भेजते हैं, पूर्व हम आगाह करा देते हैं कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अमुक तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये रहा गांधी जी का सिस्टम। गांधी जी भी पहले लोगों को आगाह करते थे, पहले उनसे बात करते थे, लेकिन जब बात नहीं बनती थी तो आंदोलन के लिए बाध्य होते थे। और आंदोलन जब करते थे, गांधी जी तो पीछे हटने का नाम नहीं लेते थे। उनका आंदोलन बहुत ही विशाल होता था, हजारों की संख्या में जनता इकट्ठा हो जाती थी। जैसा कि एक घटना का वर्णन हम आपसे किए थे, राजकुमार शुक्ला पश्चिमी चंपारण का एक अदना सा किसान था। किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहे थे, बटाईदार किसान थे, सब कुछ उनसे ले लिया जाता था, उनको कुछ नहीं हासिल होता था, खेती वो करते थे। किसी ने राजकुमार शुक्ला से कह दिया कि तुम्हारा यहाँ अकेले लड़ने से, मेहनत करने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर तुम गांधी जी से मिलो, गांधी जी के पास जाओ, गांधी जी अगर यहाँ आए तो किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा। और यह बात राजकुमार शुक्ला के दिमाग में घुसा और कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन चलने वाला था, उसको पता चल गया और महात्मा गांधी के पास आया, अवसर पाकर के किसानों की दुर्दशा को सुनाया। और महात्मा गांधी कितने सीधे साधे सिंपल इंसान थे, उसकी समस्या को बड़े गौर से सुनते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं, अपनी 1-2 महीने की प्लानिंग को बताते हैं कि मुझे अमुक तिथि में फला जगह मीटिंग लेना है, उसके बाद वहाँ जाना है, उसके बाद वहाँ जाना है, इतना शेड्यूल हमारा बिजी है, उसके बाद आना, मैं तुम्हें समय दूंगा और तुम्हारी समस्या का चलूंगा, निराकरण कराऊंगा। इस तरह से वह गांधी जी के साथ ही रहा और समय पाकर अंत में कहे कि हमें कोई डेट दे देते तो बहुत अच्छा रहता। गांधी जी कहे अच्छा ठीक है, फला तारीख को फला जगह मीटिंग है, वो हमारा अंतिम मीटिंग है, उसके बाद हमको कुछ समय मिल जाएंगे, वहीं पर आना, हमको रिसीव कर लेना। वह तिथि को याद रखा था, महात्मा गांधी के पास उक्त तिथि को पहुंचता है और महात्मा गांधी तैयार हो जाते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं और चले जाते हैं बिहार के लिए। रास्ते में मुजफ्फरपुर पड़ता है, मुजफ्फरपुर रुकने की कोशिश करते हैं और वहीं जब गए तभी जो है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से उनकी मुलाकात हुई थी, उनकी बात हुई थी। गांधी जी कितने सादगी में जीने वाले व्यक्ति थे, कितने सच्चे व्यक्ति थे कि एक अनपढ़ निरक्षर किसान से भी वह बड़े आसानी से मिलते थे। लेकिन आज के हमारे नेतागण, हमको सोचना पड़ता है, 100 बार सोचना पड़ता है, जिता देते हैं तो मिलने के लिए। बाकी संक्षेप में फेस्टिवल के बारे में आते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फेस्टिवल, 2 तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, एक धार्मिक त्यौहार और एक राष्ट्रीय त्यौहार। धार्मिक त्यौहार विविध धर्मों के मानने वाले लोग भारत में रहते हैं, वो अपना अपना त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। फिर भी प्रत्येक बिरादरी के लोग एक त्योहारों में शेयर करते हैं, यही भारत की शान है, यही भारत की सम्मान है। लेकिन दूसरा जो हमारा फेस्टिवल होता है वह नेशनल फेस्टिवल होता है, राष्ट्रीय त्यौहार होता है। और वह त्यौहार
न किसी एक जाति का होता है, न किसी एक धर्म का होता है, बल्कि वो जो हमारा नेशनल फेस्टिवल है भारत में रहने वाले हर जाति धर्म वर्ग के लोगों का होता है। और यही हमारा जो नेशनल फेस्टिवल होता है वही संपूर्ण भारत की एकता का एक मिसाल होता है। और इस राष्ट्रीय त्योहार में 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती होता है। तो उसी क्रम में आज गांधी जयंती है, हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। हम सभी लोग उसी क्रम में यहाँ इकट्ठा हुए हैं गांधी जी और तमाम देशभक्तों को अपना सम्मान देने के लिए। तो इसी क्रम में आज हमने सम्मान दिया और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।